ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4। अब हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट के बारे में। नाउ वी विल सी द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। तो हमारे पास सबसे पहला आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में। तो टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। वो सीरीज में कब कहलाए, सीरीज में कनेक्टेड कब कहलाएंगे? जब उनमें पास करने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा। अगर उन सब में करंट जो है सर्किट में एक ही तरह का करंट फ्लो करेगा, एक ही करंट फ्लो करेगा सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीरीज में बोलेंगे। और उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस, हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके जो हमने अप्लाइड सोर्स दिया हुआ है, जो हमने टोटल वोल्टेज दी है, उसके बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी सबका रेजिस्टेंस ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आ सकता है। नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर दैट। ये डायग्राम है, यू कैन सी R1 R2 R3। आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, एक की है और एक एमीटर है। सबके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो सबके पास अपनी अपनी खुद की वोल्टेज है। V1 इज अ वोल्टेज अक्रॉस R1, V2 इज अ वोल्टेज अक्रॉस R2, V3 is a voltage across R3. From the Ohm's law in the first box we can see V1 equal to I into R1, because as we know that all they are connected in series, so our common current will flow all the three resistance, that is I. So V1 equals to, let's say, I R1 for the second, V2 equal to I R2 for the third, V3 equal to I into R3. When they are connected in series, so potential difference should be added. So V equal to V1 plus V2 plus V3, that is the total potential we are applied from the battery, should be equal to the sum of individual potential, that is V1 plus V2 plus V3. And now since we know that from the Ohm's law, let us imagine कि all the three resistance, that is R1, R2, R3 are removed from here, and a total new resistance, a total effective resistance, resultant resistance is you can say used here, and whose value is, let's say, R. So we will apply the Ohm's law for that resistance also, and the equation will become V equals to I into R. So in the third box you can say V equal to IR. So using first, second and third box we will get V1 plus V2 plus V3 equal to IR. Put the value of V1, V2, V3 here. You can take out the I common and I will be cancelled, and you will get R equal to R1 plus R2 plus R3. So let us imagine if value of R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, R3 is 3 ohm. So total resistance will be 6 ohm, 1 plus 2 plus 3. So in the series the total resistance will be given as the sum of individual resistance, that is R1 plus R2 plus R3. Next we have the disadvantage. While we are using series arrangement, so we should also remember that it is not effective as compared to other arrangement, that is parallel. And why is that? Let's see the first point. Two different electrical appliances having different current requirements cannot be connected in series as the circuit constant in a series. Let us, for example, we need for an electric iron, for electric heater, for electric motor. These are heavy devices, and we need a, you can say, 15 ampere current for this. And for a bulb, we need a small current. So we cannot connect all in the series connection. Why? Because they need a different current. But in series, we need only single current. So we cannot connect all the appliances in the same sequence, because each one need a different current. One of the component fail in a series circuit, the circuit gets broken. अगर कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे वो करंट पास नहीं करेगा। सो लेट्स सी द सेकंड अरेंजमेंट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, पैरेलल में करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर रेजिस्टेंस के पास करंट अलग अलग होता है, लेकिन इन तीनों सब सारे रेजिस्टेंस का के पास जो करंट होगा वो टोटल करंट के बराबर आना चाहिए। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। हर रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो ये डायग्राम में आपका R1, R2, R3। पहले वाले में करंट I1 लेट अस कंसीडर, सेकंड में I2, थर्ड में I3, एंड I विल बी ब्रोकन आउट इनटू 3 पार्ट, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, और वही जुड़ के टोटल I में चला गया आगे। तो इन द फर्स्ट बॉक्स वी कैन से I1 की वैल्यू निकालिए, कितना V बाई R1। V क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल सबके पास पैरेलल में क्या होता है, सेम। सो V बाई R1, अगले में V बाई R2, अगले में V बाई R3। हमने इस तरह से करा, टोटल करंट सेम होगा तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हमने इन सबको हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगाना है वहां पे जो टोटल की तरह काम करेगा, तो I इक्वल टू V बाई R हमने यूज करा। ऑल द 3 बॉक्सेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यूज करके हम फोर्थ बॉक्स में गए। वहां पे हम देख सकते हैं कि V इज टेकन आउटसाइड एंड कॉमन, एंड विच इज गोइंग टू बी कैंसिल्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो यू विल गेट 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई प्लस R2 प्लस 1 बाई R3। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल सम होता है ये पैरेलल में, रेसिप्रोकल सम आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। वाई इट इज एडवांटेज, इसमें एडवांटेज है कि अगर एक डिवाइस खराब हो जाती है तो बाकी की डिवाइस अपने में काम प्रॉपर करते में कनेक्टेड हो सकती है। एक बल्ब खराब हुआ तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट सबके पास अलग अलग जा रहे हैं इसके अंदर।
दूसरा ये है कि पैरेलल अरेंजमेंट डिवाइड्स करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड हेंस ईच कंपोनेंट रिक्वायर्स अ रिसीव्ड अमाउंट ऑफ करंट, यानी जिनके पास जितना जितना करंट चाहिए उनको उतना उतना मिल सकता है, क्योंकि इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबके पास अपना अलग अलग करंट जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू सबके पास अलग अलग हो सकती है। ओके।